Okay, dear students, let us continue with the big questions. Journal entries we have seen, but again we will revise with this because we need to know how the practical part of it also covers. But as essay type questions are not asked in board exams, so we will just practice out few to get the working idea of it. Okay, see what are the steps here carried forward. What are the steps? First step, normally we will have to close balance sheet. बैलेंस शीट जो ओपनिंग दी हुई होती है उसको हमको क्या करना पड़ता है, क्लोज. लेट अस हाईलाइट दैट वन ऑल्सो. हमको सबसे पहले क्या स्टेप लेना होता है, वी हैव टू क्लोज द बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन टू अस. देन वी हैव टू चेक इंफॉर्मेशन इन दिस, how assets are realized or liabilities are paid. Give effect, we have to give effect of it also in our books कि कैसे assets realize हो रहे हैं या कैसे liabilities pay हो रही हैं. Then we have to close the realization account and difference is transferred to partners capital. Close partners capital and difference is transferred to cash bank account and finally close cash bank account which tallies. तो steps हमको बहुत clear है. सबसे पहले बैलेंस शीट की सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है. इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट की जितनी इंफॉर्मेशन या जो भी हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज करके अकाउंट्स को क्लोज करना. आफ्टर दैट वन बाय वन शट डाउन. रियलाइजेशन सरप्लस टू पार्टनर्स कैपिटल सरप्लस और डिफरेंस ऑफ इट गोज टू कैश बैंक एंड फाइनली अवर कैश बैंक अकाउंट मस्ट टैली. ओके, सो दीज आर स्टेप्स. Let us see what we are more about it, how to make a moment of it. हम practically भी इसको देखेंगे. First I am just trying to explain you so that you can do it on your own. पहला step क्या करते हैं, opening balance sheet में asset side जाएंगे. Which side we are moving first? We will first move on which side? Asset side. Okay, asset side को पहले close करना है. Close करने के लिए क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो पूरी बैलेंस शीट को बंद करना पड़ेगा. ठीक है, तो एसेट साइड को बंद करने के लिए क्या करेंगे, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू विच अकाउंट, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एक्सेप्ट कैश का बैलेंस. वो भी एसेट साइड होगा लेकिन गोज टू कैश अकाउंट ओनली. पार्टनर का कोई करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो भी एसेट साइड होगा, इट विल गो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. Okay, and if PL, any debit balance of PL is given which is accumulated loss, that will be distributed to partners in their PL. So in this way, assets are dissolved. Yeah, assets are shut down or closed. After shutting down assets, check liabilities. Close all liabilities. Capital liability side को बंद करना है, तो capital is transferred to capital account, whether it is in fixed or current. Then second, whatever accumulated PLs are there, they will be transferred to partners capital account. Accumulated profit will go to partners capital account. But mind it, I'm writing it. But if any provisions are there, provisions are what? Provisions are reserves against asset. Any provisions are there, then they are shifted to which account? Realization account and closed. But remaining all accumulated profits are there, like general reserve is there, and then if accumulated, purely accumulate, workman accident compensation, क्योंकि फर्म तो बंद हो रही है, किसी वर्कर को हमको अभी क्लेम देने की जरूरत नहीं है, ऐसे अमाउंट्स को कहाँ हम ट्रांसफर करते हैं, ऐसे अमाउंट क्योंकि ये रिजर्व्स हैं, क्योंकि ये प्योर रिजर्व्स हैं, तो ये एक तरीके का प्रॉफिट है, विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली. ऑल एंट्रीज वी हैव चेक्ड, वी आर रिवाइजिंग. All liabilities, whichever, like bills payable, creditors, bank loan, Srimati's loan, all liabilities will be closed and transferred to which account? Realization account along with provisions. कोई provisions होंगे वो भी कहाँ जाएंगे? Realization account में जाएंगे. This way, this concept must be clear, closing concept. Okay.
वही हम लोग रिवाइज कर रहे हैं. Let us check if it was to be set in the realization account. How a format of realization account is there? For your knowledge, I am showing you only. Realization account, normal account form, debit side, credit side, और इस तरह से ही मूव करता है. All live assets, assets if any, जो भी assets होते हैं, assets are closed realization account debit to sundry, लिखते क्या है? Sundry assets. Please see to it once again. I am telling you, जितने भी एसेट होंगे यहां आएंगे, कैश अपने अकाउंट में जाएगा. ओके, सिर्फ एसेट यहां आएंगे. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ओके, ऑल दिस व्हीकल्स, ऑल एसेट्स विल बी, पूरा यहां लिस्ट बनाएंगे एंड देयर अमाउंट देयर विल बी ट्रांसफर्ड हियर इन रियलाइजेशन अकाउंट. सेम मैनर on credit side of realization account, all sundry liabilities will be, see इधर से एंट्री आपको पता चलती है. एसेट होगा तो रियलाइजेशन को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्लोजिंग एंट्री. ऐसे लाइबिलिटी होगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा. सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. आई हैव एक्सप्लेन इन वीडियो ऑल्सो अर्लियर. पार्ट 2 में भी एक्सप्लेन किया है, वीडियो है part 2 wala, that all journal entries, whatever liabilities are there, creditors, bills payable, loan, this, that, all liabilities will be closed here. Not only this much, if any provisions are there, provisions are what? They are here reserves against assets, like bad debts reserve. ये इसका दूसरा नाम है. वैसे क्या दिया होता है? Provision for doubtful debt, one and the same thing. Provision for doubtful debt, that is also brought down here. Provision for doubtful debts is there. Then any other provisions are there, like depreciation fund, investment fluctuation fund. These are known as provisions against assets. This is against debtors. This is against assets, all our fixed asset. This is again investment, our assets. So these are provisions. किसी को भी डिसोल्यूशन के टाइम पे इसको पे करने की जरूरत, वी आर नॉट सपोज टू पे टू एनीवन, राइट? दैट्स व्हाई दे आर जस्ट ब्रॉट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्लोज्ड. एंट्री प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन खुद क्या हो रहा है? क्रेडिट. प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. आफ्टर दिस वी विल चेक इंफॉर्मेशन. इफ एनी एसेट्स आर सोल्ड, तो कैश आएगी. खुद आपको जो समझनी है ना बात, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि एसेट इज ऑलरेडी क्लोज्ड. रियलाइजेशन टू एसेट बंद हो गया, पैसा आएगा तो कहां आएगा? रियलाइज. तब एंट्री पास करेंगे. कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इफ इट इज सोल्ड फॉर कैश. जितना भी, अगर कोई एसेट पार्टनर ले रहा है तो टू दैट पार्टनर का नाम लिखेंगे. सपोज ए ले रहा है तो ए इज कैपिटल अकाउंट. जो एसेट ले रहा है, सपोज वो मशीन ले रहा है और वो 27,000 पे ले रहा है, तो हम एसेट जितने पे लेगा, जिस वैल्यू पे जो चीज लेगा लिखेंगे. बट एंट्री, जनरल एंट्री, partners capital account debit to realization account. I mean to say, if asset is sold in the market, cash comes in, cash account to realization. If asset is taken up by partner, partner account debit to realization. This is for amount coming in. Reverse, अब liabilities पे भी होंगी. कुछ नई इंफॉर्मेशन दी है तो liabilities will be paid 100%. In any case, सब लाइबिलिटीज पे होने चाहिए, वरना हमको क्रेडिटर्स छोड़ते नहीं है. दे डोंट अलाउ अस टू डिसॉल्व द फर्म. तो यहाँ पे जो भी पेमेंट होगी दैट विल बी डन थ्रू रियल एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. आई एम गिविंग यू दिस एंट्री फर्स्ट कि जितना भी डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस हैं, एज पर रूल these are to be paid first and then to cash bank account. This is also whatever liability, creditor को जितना पे किया, bills payable को जितना, whatever is made is है. So entry for payment done, realization account debit. Entry देखो कैसे create हो रही है, realization account debit
to cash bank account or to, if liability is taken by any partner, तो partner's capital account will be credited. Suppose he says I will pay Srimati ka loan of 25,000. So in this way, entry realization account debit to partner's capital account, ब्रैकेट में श्रीमती का लोन, नरेशन में आप लिख सकते हैं. In this way we must check always that all liabilities are paid and all assets are realized here and shown here. After this process, shutdown होगा realization का. If debit side is more, here if it is 1 lakh, here 75,000. If debit side is more, there it is a loss. It will go to partners capital if it is there. अगर difference इधर आता है तो loss. जितने भी partners हैं उनको distribute PL में. Reverse, if credit side is more, either or else, to partners capital, this will be treated as profit. Partners को PL proportion में distribute करेंगे. Either there will be profit or there will be loss. In short, our disrealization account closes here. If any next account which is prepared is cash bank account, which is important. Now to show all working, we will go for 1 or 2 sample questions also, so that you understand completely how this realization account works. पहले हम एक easy वाला sum ले रहे हैं. Easy बोलो तो basic वाला sum ले रहे हैं. फिर एक थोड़ा advanced level का question लेंगे. Let us take up first easy question. Okay, this is a question given in your textbook again, which I am taking. No doubt about it. So let us see this question. Setting as per requirement. Okay, अब हम इसको चेक कर लें. सेट तो कर लिया है. Okay, so okay, here if you look into this one particular question, number 7 of our textbook, okay. Yes, question number 7. Naresh and Shivali are partners sharing profit and loss in 2:3. On 39/16, they have decided to dissolve the firm. Question 7 of our exercise. Now, this date, the capital was 6 lakhs and 4 lakhs respectively. Total liabilities of firm is given to you 6 lakhs. Balance of accumulated debit balance of profit. ये क्या हो जाएगा? Debit balance है तो this will be known as loss. Was 1 lakh and cash balance also was 1 lakh. 50% are realized from assets of the firm. Dissolution expenses also is given to you here. That was also of 1 lakh. Now, taking support of this textbook, question number 7, we are solving it on a practical basis. Let us take it. Okay. So what we need to prepare? क्या क्या बनाना है? देखो इधर opening balance sheet नहीं दी हुई है and it is a requirement. First we will prepare what? पहले हम क्या बनाएंगे? Opening balance sheet. Opening balance sheet और main part क्या क्या चीजें बनानी होती है इसमें अपन को? We will prepare realization account. Here partners capital account, दोनों के नाम से नरेश एंड शिवाल, and then कैश बैंक अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, क्वेश्चन नंबर वी आर डूइंग 7, इसमें नहीं मेंशन्ड है. दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन. सिंपल सी इंफॉर्मेशन. फर्स्ट, capital is given to us 6 lakhs and 4 lakhs of both partners. I am taking here capital of Naresh and Shiva. So 6 lakhs and 4 lakhs respectively capital. This makes 10 lakhs. Okay. Now second information given in the question is that मेरे को क्वेश्चन में दिया है, मैं कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे 6 lakhs और 4 lakhs इधर ही. लाइबिलिटीज टोटल कितनी है? 6 lakhs. सो टेक इट. नेचुरली लाइबिलिटीज हैं तो यही आएंगी कैपिटल लाइबिलिटी साइड में. दे आर 6 lakhs ऑलरेडी मेंशन्ड हियर इन आवर क्वेश्चन. नाउ ट्विस्ट. पहले भी अपन ने सीखा है, जब ये दिया है तो इसका टोटल कितना आता है? 16.
जब कैपिटल लायबिलिटी का साइड का टोटल 16 है तो एसेट साइड का भी टोटल कितना होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट it also has to be 16 lakhs. Now in this case further question says accumulated debit balance of PL account is 1 lakh and cash balance is 1 lakh. After that तो realization information and dissolution की बात है. तो 1-1 लाख ये दोनों है तो हम दिखा दें यहाँ पे. मैं अगर दिखाऊं ना तो यहाँ पे आएगा here profit and loss account 1 लाख का दिया है. नॉट ओनली दिस मच, कैश बैंक अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में कि कितना है वो 1 लाख है. नाउ 16 में से 2 लाख निकल गए. इट इज अ कॉमन सेंस. बाकी 14 लाख क्या होंगे हमारे? सन्ड्री एसेट्स. यहाँ सारे के सारे एसेट्स हैं ये. सो दिस वे वी प्रिपेयर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं. ओके आप लोगों को ये ध्यान देना है कि वी आर स्टार्टिंग एक्चुअली सॉल्विंग नाउ. दिस वाज प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट. नाउ फर्स्ट स्टेप अपन ने सीखा. व्हाट वाज फर्स्ट स्टेप? क्लोज बैलेंस. डिसॉल्व हो रही है तो बैलेंस शीट को क्या करना पड़ेगा? बंद. तो बंद करना है. पहले मैं कैपिटल लायबिलिटी ले रही हूं. सी कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ पार्टनर्स. दोनों पार्टनर्स का कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में. Buy, balance, brought, forward 6 lakhs and 4 lakhs respectively. Okay. Complete this side. इसके बाद liabilities. All liabilities in case of dissolution will be closed in realization. क्योंकि liability है वैसे इसका बैलेंस क्रेडिट होता है. क्लोज करना है तो प्रैक्टिकली इसको डेबिट किया पर यहां पे लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी. नाम होता है ना सबका नाम लेके आते हैं. 6 लाख सीधा टोटल दिया है तो सीधा टोटल. आई मीन टू से आपने ये बैलेंस भी ट्रांसफर कर दिया, ये बैलेंस भी ट्रांसफर कर दिया तो आपकी लायबिलिटी साइड हो गया है बंद. ऐसे ही एसेट साइड पे जाएं. यहां पे पहले एसेट्स दिए हैं उठाएं. एसेट्स ऑल्सो वी हैव टेक will be closed in realization. तो realization में लिखते हैं टू sundry assets. जनरल एंट्री देखी ना, realization account debit to sundry assets. ये भी याद रखना. 14 lakhs liabilities to credit side, assets to any type of asset. Then cash bank. कैश बैंक को भी टिक करो, लेके जाओ. कहां जाएगा? कैश बैंक goes to its own account. To balance brought forward. We know it is how much? 1 lakh. Okay. Last here it is. अभी ध्यान से ये एसेट साइड पे पीएल है तो दिस इज अक्यूमुलेटेड लॉस. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा. लॉस है इसीलिए पीएल डेबिट होगा पार्टनर्स को. समझना ये लॉस है. अगर कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे. लॉस है इसीलिए पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं. पीएल रेशियो और क्वेश्चन में पीएल रेशियो 2:3 इज गिवन. इफ यू चेक ना इट इज गिवन टू यू 2:3. तो पार्टनर्स को 2:3 में हम दे देंगे. दैट इज 1 लाख को 2:3 में करूंगी तो 40,000 एंड 60,000 easier respectively. So in this manner my assets are also. सारी बैलेंस शीट मैंने क्या कर दिए? क्लोज. बिकॉज आई वॉन्ट टू डिसॉल्व माई फर्म. इसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन ये बोला है क्वेश्चन में 50% आर रियलाइज फ्रॉम एसेट्स. जितने एसेट्स हैं ना उसमें से सिर्फ 50% मिला है. चलो एसेट 14 lakhs के हैं. 50% ऑफ 14 lakhs विल बी 7 lakh. रियलाइज हुए इसका मतलब क्या हुआ? बेचा तो पैसा मिला. हाँ, रियलाइज मीन्स सोल्ड फॉर कैश. हियर 50% इज रियलाइज बाय कैश बैंक अकाउंट. क्यों? कैश कम्स इन. बेचा एसेट तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि यहां पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे ये कोई उड़ के नहीं आए हैं. किसको बेचा? एसेट्स को बेचा. नाउ फर्दर इंफॉर्मेशन, जैसा इंफॉर्मेशन दिया हो वैसे ही करेंगे. फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन इज डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस आर 1 लाख. ठीक है, डिसॉल्यूशन एक्सपेंस है तो पेमेंट है. पेमेंट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट.
पेमेंट पैसा आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट जाएगा, तो भी रियलाइजेशन अकाउंट से जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे आप डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और ये 1 लाख है। और बाकी कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला है। ऑटोमेटिकली दिस लाइबिलिटीज विल बी पेड 100%, कुछ नहीं बोला है तो भी 100% पेमेंट करनी है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्या पे कर रहे हैं हम? लाइबिलिटीज के कितने हैं? 6 lakhs। प्लीज सी टू इट दैट यू नो दिस। कुछ नहीं बोला है तो भी लाइबिलिटीज पूरी की पूरी पे होंगी। ओके, नाउ this though I showed you, assets are realized, liabilities are paid, dissolution, but these are our adjustments। ये जितने भी हैं, ये जो भी हमने जब बैलेंस शीट से हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना चीजें, उनका सिंगल इफेक्ट जो बैलेंस शीट से आएंगे, बिकॉज दीज आर बैलेंसेस, सो 1 इफेक्ट, बट दिस आर आवर एडजस्टमेंट्स। क्रॉस इफेक्ट, यहां पे कैश क्रेडिट है तो कैश में डेबिट होगा टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में एसेट्स। पैसा आया कहां से? एसेट्स। यहां पे भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक है, यहां पे डेबिट है तो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 लाख। हियर नेक्स्ट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरी पेमेंट है liability, means payment is done through realization, asset is also received, amount is also received through cross effects। याद रखना, other than balance sheet जितने भी effects देंगे they will have a double effect because they are our adjustment entries। okay, अभी यहाँ पे stop नहीं करेंगे, अभी भले see that liabilities are paid, assets are realized, now shut down। if I check ना हियर, अगर शटडाउन में सबसे पहले अपन ने सीखा क्या क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन। पहले मैं देखूं ना इधर टोटल कितना आ रहा है 13, और इधर कितना आ रहा है 15 और 6, टोटल कितना आ जाता है 21। सिंपल, डेबिट साइड इज मोर, डेबिट 21 माइनस 13, डेबिट साइड इज मोर, डिफरेंस ऑफ 8 lakh is coming on credit side। Now you can understand this will be loss। लिखेंगे क्या आप इधर इसको? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस। किस किस को जाएगा? नरेश को, शिविल को, दोनों को। और कौन से रेशियो में? 2:3 PL प्रपोर्शन 2:3 में जाएगा। दैट इज 3,20,000 एंड 4,80,000 रिस्पेक्टिवली। छोड़ना नहीं इसको भी, इसका भी क्रॉस इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस 3,20,000 4,80,000। so realization is closed। now close partners capital account। if you check now here नरेश का 6, this side it is 720, so ये ज्यादा है, 7,20,000 को क्लोज करेंगे, डिफरेंस 120। you will write here by cash bank account, always they will be closed through cash bank, but in case of Shiva it is different। here 4 lakhs, here you can see it comes to total of 5,40,000। 5,40,000 minus 4 lakh 1,40,000, इसको भी यहाँ पे सॉरी, हियर डिफरेंस इज ना, ये 6 lakhs है टोटल, 6 lakhs का टोटल है, और दिस साइड 6 lakhs, ये माइनस 3, 40, 50, 60। ओके, 6 lakhs में से हमने कितना माइनस करना है? 3,60,000 माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस इधर आ रहा है। वंस अगेन नरेश का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, कि इस साइड टोटल आ रहा है 6 लाख, 6 लाख में से 40 और 3 20, 3,60,000 इफ वी माइनस 1 ईयर 2,40,000 सरप्लस, तो नरेश में लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट। ओके, इसको एस्ट्रिक डालो, क्रॉस इफेक्ट देना पड़ेगा। शिविल का उल्टा है,
This side is more. Here 5,40,000 is total, grand total 5,40,000 minus 4, 14,000 here it is, grand total 5,40,000. 1,40,000. Okay, 1,40,000. क्रॉस इफेक्ट, यहां क्रेडिट तो कैश टू व्हाट लिखेंगे, कौन सा कैपिटल है, शिवल्स कैपिटल 1,40,000, 1,40,000. एंड हियर रिवर्स ले ले, बाय नरेश का कैपिटल 2,40,000. Now finally our cash account must tally. If you can see here 6, 7, 8, 9, 9,40,000 is here total. Here also 7, 8, 9, 40. Seedha. So finally our cash account tallies. So this one sum gives you so many idea about practical working of the dissolution process. किस तरह से practically dissolution process होता है. Okay? Realization में assets आएंगे, liabilities आएंगे, assets realize इधर होंगे, liabilities pay इधर होंगी, and so on and on and on. So let us go for next one more question. Okay?